start another topic of this unit number 4, that is 3-terminal voltage regulators. ठीक, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द 3-terminal voltage regulator. And in 3-terminal voltage regulator, first of all we will discuss about the fixed 3-terminal voltage regulator. एक्चुअल में 3-terminal voltage regulator है, उसको 2 टाइप्स में या 2 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज fixed 3-terminal voltage regulator and second one is called as adjustable 3-terminal voltage regulator. So these are the 2 different categories of 3-terminal. And again this fixed and variable is subdivided into 2 categories. One is negative fixed terminal voltage regulator, positive fixed terminal voltage regulator. Similarly, positive variable 3-terminal voltage regulator and negative variable 3-terminal voltage regulator. ये हमको डिस्कस करना है. 2 टॉपिक और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक्चुअल में वो भी आने चाहिए थे यहाँ पे. These are the topics IC 78XX and IC 79XX. These are the fixed 3-terminal voltage regulator. But in case of variable 3-terminal voltage regulator, there are another 2 topics. One is LM317, that is called as variable positive 3-terminal voltage regulator, and second one is LM337. It is a negative variable 3-terminal voltage regulator. ये टॉपिक आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे. ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 3-terminal voltage regulator. ये सब कुछ क्लियर है ना? मैं आपको पहले ही बताया, मेरे को कुछ आज पता नहीं चलेगा एक्चुअल में अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो, सिग्नल में अगर वेरिएशन हो तो मेरे को आप लोग बता दीजिएगा अपना माइक ऑन करके. ठीक है, तो अभी दिख रहा है ना स्क्रीन? कोई प्रॉब्लम है क्या? वॉइस क्लियर है ना? जल्दी से कोई भी बता दीजिए मेरे को तो मैं आगे बढ़ूं. यस सर. ठीक है, तो फंक्शनल, दिस इज अ फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 3-terminal voltage regulator. In case of 3-terminal, as from its name, there are 3 different terminals in case of the regulator. First terminal is input terminal, second terminal is output terminal, and the third terminal is ground. ठीक, तो जो 3-terminal voltage regulator है इसमें 3 terminals होते हैं. जो आपका फर्स्ट टर्मिनल है दैट इज कॉल्ड एज द इनपुट टर्मिनल. इन केस ऑफ दिस फंक्शनल डायग्राम, दिस इज द फर्स्ट टर्मिनल. सेकंड टर्मिनल इज द आउटपुट टर्मिनल, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द सेकंड टर्मिनल. एंड थर्ड टर्मिनल इज द ग्राउंड टर्मिनल, so this is the position of the ground terminal. तो ये एक्चुअल में जो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है या कह सकते हैं इसका इंटरनल डायग्राम. जब आप इसके आईसी फॉर्म में हम लोग देखेंगे तो आपको सिर्फ ये दिखेगा टर्मिनल और ये दिखेगा, अंदर की चीजें आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगी. तो आप एक्चुअल में देख लीजिए इस फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम से इंटरनली क्या कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं इन केस ऑफ 3-terminal voltage regulator. तो इंटरनली इन केस ऑफ 3-terminal voltage regulator, first is pass transistor. This pass transistor is also called as the control transistor. Why? Because all the regulators are basically the series voltage regulators. These are the series voltage regulator. So why? Because this pass transistor is connected in series between input and output terminal. The pass transistor कहाँ पे connected है? In series with the load. That's why it's a series type 3-terminal voltage regulator. तो pass transistor यहाँ पे connected है in series with the load. So whenever there is an increase in the value of output at the output terminal, so that excessive amount of voltage will be sorted out with the help of this pass transistor. अगर मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है तो जितना भी अमाउंट में इंक्रीज हुआ ये आपका क्या है? पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क या सैम्पलिंग नेटवर्क, जो इसके पहले हम लोग डिस्कस किए. सैम्पलिंग नेटवर्क इज कनेक्टेड विद दिस एरर एम्पलीफायर. Based on this reference voltage and the amount of voltage generated at the output terminal, the error signal is generated at the output of this operational amplifier. That output is, with the help of this thermal shutdown terminal, is connected to pass transistor. तो अगर वोल्टेज जितना भी ज्यादा हो पास ट्रांजिस्टर को आपको पता चल जाता है इस फीडबैक नेटवर्क से, और उतने अमाउंट ऑफ वोल्टेज को आप क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं.
एंड डिक्रीज होने से अगेन रेगुलेटेड अमाउंट ऑफ वोल्टेज विल बी जनरेटेड एट द आउटपुट टर्मिनल ऑफ दिस 3 टर्मिनल वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, सो पास ट्रांजिस्टर बेसिकली यहाँ पे क्या है, कंट्रोल एलिमेंट है इन केस ऑफ 3 टर्मिनल वोल्टेज रेगुलेटर। सेकेंड ब्लॉक आपको जो दिख रहा होगा दैट इज थर्मल शटडाउन एंड करंट लिमिटिंग सर्किट। In case there is an excessive amount of voltage generated at the output terminal, और साथ में यहाँ पे देखिए कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर कनेक्टेड है, तो जो भी आउटपुट वोल्टेज आपका एक्सेसिव जनरेट होगा दैट विल बी एम्पलीफाइड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगर उस वोल्टेज की वैल्यू या करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो ये जो आपका पास ट्रांजिस्टर है दैट कैन बी बर्न आउट। तो इस पास ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, थर्मल शटडाउन या करंट लिमिटिंग सर्किटरी यूज करते हैं in series with error amplifier and pass transistor. So this is the basic functionality of this particular block. Third is this error amplifier. This is also called as the comparator circuit. So the basic functionality of this error amplifier is to generate the error signal at the output. And how to generate the error? So as you can see, the positive terminal of this error amplifier is connected with a reference voltage source, and this reference voltage source is connected to जेनर डायोड, क्योंकि हमेशा मैं आपको पहले ही बताया हम लोग रेफरेंस किसके थ्रू देंगे, विद द हेल्प ऑफ जेनर डायोड ओनली। ठीक, तो पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद रेफरेंस और पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद जेनर डायोड। सो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज जनरेटेड एट दिस पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सैंपलिंग नेटवर्क, अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। So suppose here the value of voltage is VA, so that VA can be calculated with the help of V output into it's the voltage across the resistance R1. So V output into R1 divided by R1 plus R2. So with the help of this particular equation we can easily calculate the value of VA. और यहाँ से आपको पता चल जाएगा अगर आउटपुट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो similarly the value of VA will be increases. And based on the level of the voltage VZ and VA, the error voltage will be generated. ठीक, कम होगा तो कम जनरेट होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, वो डिपेंड करेगा किस वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है। And across this load we are getting the output voltage. So this is the functional block diagram of 3 terminal voltage regulator. I hope that would be clear to all of you. Now diagram of 3 terminal voltage regulator. Now moving further to first kind of 3 terminal voltage regulator, that is fixed volt type, fixed 3 terminal voltage regulator. जैसे मैं आपको पहले ही बताया जो 3 terminal voltage regulator है that is basically divided into 2 categories. One is fixed type and second is variable type. तो fixed type में भी 2 types हैं, one is positive and second one is negative. तो जो आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे that is fixed positive 3 terminal voltage regulator. Fixed positive 3 terminal voltage regulator, इसका मतलब क्या है, इस वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू जो भी वोल्टेज जनरेट होगा दैट इज फिक्स्ड। उस पर्टिकुलर आईसी के लिए आपको वो फिक्स्ड वोल्टेज ही मिलेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक, इन केस ऑफ फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर। और ये क्या है, फिक्स्ड पॉजिटिव, मतलब जितना भी आउटपुट वोल्टेज मिलेगा दैट विल बी पॉजिटिव ओनली। ठीक है, जो भी आउटपुट आपको जनरेट होगा दैट विल बी पॉजिटिव ओनली। तो पॉजिटिव फिक्स्ड वोल्टेज इज जनरेटेड विद दिस। इसके लिए आईसी कौन सी हम लोग यूज करते हैं, द नेम ऑफ द आईसी इज IC 78XX, 78XX. That is the IC number of fixed positive voltage regulator, where the 78 represents the positive voltage. 78 क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भी वोल्टेज आपका जनरेट हो रहा है that is positive only. ठीक, तो 78 रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको कोई वोल्टेज रेगुलेटर आप मार्केट में लेने जाते हैं उसके बाद आप 78 से सीरीज स्टार्ट करते हैं तो सामने वाला डायरेक्टली समझ जाएगा कि जो भी आउटपुट वोल्टेज आपको जनरेट करना है दैट इज पॉजिटिव। ठीक, लास्ट के जो ये 2 डिजिट है डबल एक्स दैट रिप्रेजेंट्स द आउटपुट वोल्टेज। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपके कितना आउटपुट आपको चाहिए, तो आउटपुट वोल्टेज कितना जनरेट होगा वो रिप्रेजेंट करता है ये लास्ट के 2 डबल एक्स। जैसे यहाँ पे देखिए एक टेबल यहाँ पे डिनोटेड है, अगर आपका आईसी नंबर है 7805, क्योंकि आईसी नंबर इज 7805 दैट मींस 5 वोल्ट, और किस टाइप का 5 वोल्ट, प्लस 5 वोल्ट आउटपुट आपका रिक्वायरमेंट है। ठीक, क्योंकि 78 से क्या रिप्रेजेंट हो गया पॉजिटिव साइन और 05 से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है 5 वोल्ट।
So if the IC number is 7805, that means you are in a need of plus 5 volt voltage regulator. ठीक है, अगर आपको चाहिए plus 10 volt तो आपका IC नंबर क्या होगा 7810. For plus 10 volt output voltage, IC number will be 7810. Suppose करिए आपको आउटपुट वोल्टेज चाहिए प्लस 18 वोल्ट, तो IC नंबर क्या होगा 7818 वोल्ट. ठीक, तो यहाँ तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से. 78 का मतलब है पॉजिटिव वोल्टेज और लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कितना आउटपुट वोल्टेज आपको चाहिए. ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ this is the pin diagram. Pin number 1 is for the input, pin number 2 is for the ground, and pin number 3 is for the output. मैं आपको पहले ही बताया पिन नंबर 2 और 3 इंटरचेंजेबल. किसी कंडीशन में 2 से आपको आउटपुट मिलता है, किसी कंडीशन में 3 से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो पिन हियर इन केस ऑफ 78XX, पिन नंबर 1 इज फॉर इनपुट, 2 इज फॉर ग्राउंड एंड 3 इज फॉर आउटपुट. ठीक, यहाँ पे देखिए आपको 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड दिख रहे हैं, दैट इज C1 एंड C2. What is the requirement of these capacitor? तो जो ये C1 कैपेसिटर है ये आप कब कनेक्ट करते हैं, जब आपका IC और जो इनपुट वोल्टेज सोर्स है अगर इनके बीच का डिस्टेंस मोर देन 5 सेंटीमीटर है. If the distance in between input voltage source and the IC first number terminal is more than 5 centimeter, on that condition it's compulsory to use the capacitor C1. आपको C1 कनेक्ट करना कंपलसरी है. अगर उससे कम डिस्टेंस है तो देयर इज नो नीड टू कनेक्ट द कैपेसिटर्स. ठीक, तो कई बार इस चीज को पूछा जाता है व्हाट इज द नीड ऑफ दिस कैपेसिटर. अगर डिस्टेंस आपका ज्यादा है वोल्टेज सोर्स और पिन के बीच में, देन यू नीड टू कनेक्ट द कैपेसिटर C1, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू कनेक्ट कैपेसिटर C1. सेकंड एडवांटेज क्या है कैपेसिटर को कनेक्ट करना, इट इज यूज्ड फॉर द फिल्टरिंग एक्शन. It is basically used for the filtering. So if there is some kind of the noise is present into the circuitry, so that will be removed with the help of this capacitor. So that is acting like a C capacitor, C filter. ठीक, ये दूसरा एडवांटेज. आउटपुट टर्मिनल में जो C2 है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉइज प्रेजेंट है सर्किट में, उसको मिनिमाइज करने का काम कैपेसिटर करता है. So these are the 2 components connected into the IC 78XX. So as you can see from here, pin number 1 is connected with the help of input voltage source VIN, 2 is connected to output voltage source and 3 is connected to ground. Again I am telling you don't confuse with pin number 2 and 3. इस टाइप का अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो ये पिन नंबर 1 2 3 है. अगर आपको इस टाइप का यूज करेंगे तो वहां पे 2 और 3 चेंज हो जाएगा. आप क्या मेंशन करते हैं उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो पिन नंबर 2 इज फॉर आउटपुट, पिन नंबर 3 फॉर ग्राउंड टर्मिनल. ठीक है, तो अगर आपको यूज करना है, सपोज करिए यू वांट टू, एक क्वेश्चन ऐसा है कि डिजाइन अ 3 टर्मिनल वोल्टेज रेगुलेटर दैट शुड जनरेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ प्लस 12 वोल्ट, देन हाउ टू जनरेट दैट पर्टिकुलर 3 टर्मिनल वोल्टेज रेगुलेटर. तो करना आपको क्या होगा, ऑलरेडी आई टोल्ड यू हाउ टू डिजाइन द पावर सप्लाई. ठीक, कैसे पावर सप्लाई डिजाइन करते हैं ये आपको पहले से पता है. अगर आपको प्लस 12 बोल रहा है फिक्स्ड, मतलब आपको फिक्स्ड 3 टर्मिनल वोल्टेज रेगुलेटर चाहिए. ठीक है, और 3 टर्मिनल वोल्टेज रेगुलेटर फिक्स्ड टाइप, वो भी पॉजिटिव वोल्टेज किसके केस में मिलेगा 7812. आपको ये भी पता है. आप क्या करेंगे, एक पावर सप्लाई जनरेट करिए. पावर सप्लाई से स्टार्ट करिए. पहले पावर सप्लाई को इनपुट से कनेक्ट कर दिए, उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद आपको क्या कनेक्ट करना है, एक उसके बाद रेक्टिफायर कनेक्ट कर दीजिए फिल्टर के साथ, और लास्ट में वोल्टेज रेगुलेटर. तो वोल्टेज रेगुलेटर की जगह में आपको क्या कनेक्ट कर देना है, सिंपली 7812. ऑल द पावर सप्लाई वुड बी सेम. ठीक, कई बार इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जाता है कि डिजाइन 3 टर्मिनल वोल्टेज रेगुलेटर, फिक्स्ड 3 टर्मिनल वोल्टेज रेगुलेटर दैट विल जनरेट द प्लस 12 वोल्ट. तो आपको सिर्फ पावर सप्लाई ध्यान रखिए, और जो वोल्टेज रेगुलेटर की पोजीशन है उसको किससे चेंज कर देंगे, 7812 से. अगर कोई बोले प्लस 15 वोल्ट जनरेट करना है तो वोल्टेज रेगुलेटर की जगह सिंपली आप किससे चेंज कर दीजिए, उसको 7815 से. अगर कोई बोले 5 वोल्ट जनरेट करना है तो रेगुलेटर को किससे चेंज कर दीजिए, 7805 से. तो सिर्फ आपको चेंजेस कहां पे लाना है, वोल्टेज रेगुलेटर के पोजीशन में, एंड ऑल द पावर सप्लाई वुड बी सेम. ठीक, ऑल द पावर सप्लाई वुड बी सेम. ठीक है, तो इसलिए आप पावर सप्लाई को ध्यान में रखिए और जो भी वोल्टेज चाहिए आप इजिली जनरेट कर सकते हैं. ठीक, तो दिस इज अबाउट फिक्स्ड.
Now, fixed negative voltage regulator. Fixed negative voltage regulator. So how can we generate the fixed negative voltage regulator? So this 79 represents the negative voltage. 79 represents the negative voltage. Similarly, this double X represents the output voltage generated with the help of that particular output. ठीक है, तो कितना आउटपुट जनरेट करना है ये डबल एक्स रिप्रेजेंट करेगा, और 79 क्या रिप्रेजेंट करने वाला है यहाँ पे? नेगेटिव वोल्टेज। तो अगर आपने गए मार्केट में और आप बोलते हैं 7908, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? -8 वोल्ट की आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर कोई बोले 7915, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? -15 वोल्ट। In case of 7924, requirement will be -24 volt. So this 79 represents the negative supply and double X represents the output voltage generated. So I hope that would be clear to all of you. 78 is for positive voltage and 79 is for negative voltage. Now the second type of 3-terminal voltage regulator, that is called as adjustable type 3-terminal voltage regulator. Adjustable type 3-terminal voltage regulator. Adjustable, that means you can adjust the amount of voltage generated from that voltage regulator. अगर आपका आउटपुट वोल्टेज आपके ऊपर रहे, मतलब आपको फिक्स करना है कितना ही वोल्टेज है, अगर वैसी कुछ रिक्वायरमेंट है, अगर वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज आपको चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट, then you need to move with adjustable type 3-terminal voltage regulator. ठीक, एडजस्टेबल में भी जो मैं आपको पहले बताया, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका फिक्स्ड में था, सिमिलरली इन केस ऑफ एडजस्टेबल आल्सो देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव 3-terminal voltage regulator. So here LM317 is positive voltage regulator, or we can say that adjustable type positive voltage regulator, and that IC number is LM317. Okay. So here we have used the LM317. Again, this capacitor C1 is needed when the distance in between the input voltage source and this LM317 first number pin is more than 5 centimeter. तब आपका C1 वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अगर ज्यादा है तो लगाना ही पड़ेगा आपको, कम है तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, आपके ऊपर। ठीक, now this resistance R1 is fixed. This resistance R1 is fixed. In general, the value of this resistance is 240 ohm. In case of adjustable type, the value of this R1 resistance is fixed and the value of that R1 is 240 ohm. इसको ध्यान में रखिए, आप प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज लगेगी। And the voltage generated across this R1 will be 1.25 volt. ठीक है, in case of adjustable type, always the value of this resistance is fixed. It's approximately 240 ohm, and the reference voltage generated across this R1 resistance is 1.25 volt. ये important चीज है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक, then how to vary the value of amount of generated output voltage? तो output voltage actual में क्या है? Total voltage from this terminal to this terminal, that is the value of output. अगर कोई बोले आउटपुट कितना होगा, तो आउटपुट विल बी वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 प्लस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2. So the addition of or the total voltage generated across the resistance R1 and R2 is equal to your total output voltage. और मैं आपको क्या बताया, वोल्टेज अक्रॉस दिस R1 रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड। कितना वोल्टेज यहाँ पे? 1.25 वोल्ट। 1.25 volt. That means only you can change the value of voltage across the resistance R2, that is VR2. इसलिए आप देखिए VR2 रेजिस्टेंस किसके थ्रू कनेक्टेड है? एक वाइपर के थ्रू। तो बेसिकली जो आपका R2 है, दैट इज अ पोटेंशियोमीटर. R2 is basically a potentiometer, and there we can vary the value of voltage generated. तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वाइपर के थ्रू आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करिए, उससे आपका आउटपुट वोल्टेज इजीली चेंज हो जाएगा। ठीक, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन जनरेट द आउटपुट वोल्टेज। With the help of this terminal, there is one fixed current that is called as I adjustment current. In number 3 के थ्रू आपका क्या यहाँ पे जनरेट होता है? Current that is called as adjustment current. And in case of adjustable type voltage regulator,
the value of this adjustment current is 100 माइक्रो एम्पियर। इसकी भी वैल्यू फिक्स है, आप ध्यान में रखिएगा, इसको आपको लगेगा। तो द वैल्यू ऑफ दिस एडजस्टमेंट करंट इज 100 माइक्रो एम्पियर। यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई एडजस्टमेंट इज 100 माइक्रो एम्पियर। ये वैल्यू इसकी फिक्स्ड है, ठीक। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है? द करंट आई एडजस्टमेंट फ्लोज आउट फ्रॉम द एडजस्टमेंट टर्मिनल and is similar to the quiescent current IQ in case of fixed voltage regulator circuit, and this current along with IR1 flows through the resistance IR2। देखिए यहाँ पर से across this resistance R1 the value of current is what? The current of resistance here the value of current is IR1। total current across the resistance R1 is IR1। current across this adjustment current is I adjustment। so what will be the value of current across the resistance R2? Across R2 the value of current is IR1 plus I adjustment। कितना हो जाएगा करंट? IR1 plus I adjustment, ठीक। तो इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? टोटल करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2, ठीक। तो यहां से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप, ठीक। तो वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए क्या? आई एडजस्टमेंट की वैल्यू, वो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कितनी है, वो फिक्स है, दैट इज 100 माइक्रो एम्पियर। तो आई एडजस्टमेंट आपको पता चल गया। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IR1। IR1 की वैल्यू भी क्या है? लगभग फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि मैं आपको बताया यहाँ पे जनरेटेड वोल्टेज कितना है R1 के अक्रॉस? 1.25 वोल्ट, इतना ही आपको मिलेगा। और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कितनी है? फिक्स्ड है, 240 ओम। तो अगर आप 1.25 को 240 से डिवाइड करिए तो इजीली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट IR1। तो यहाँ पे वोल्टेज वेरी किसके थ्रू हो सकता है? वेरी ओनली रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने से, इसलिए वाइपर कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे, क्योंकि करंट की वैल्यू फिक्स हो गई, तो जब जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे आपका आउटपुट वोल्टेज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पूछा जाता है कि R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब जो आप पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे कितनी वैल्यू का आपको पोटेंशियोमीटर यूज करना है, ठीक। आई होप दैट वुड बी क्लियर, ठीक है। देखते हैं इसके कैलकुलेशन पार्ट में। तो एक्चुअल में आपको क्या बताया? टोटल आउटपुट क्या होगा? आउटपुट अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 एंड R2। सो आउटपुट वोल्टेज विल बी VR1 प्लस VR2। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस VR1? VR1 विल बी IR1 into R1 plus what is the value of VR2? VR2 is I adjustment plus IR1। so IR1 plus I adjustment into R2, that is the value of VR2, ठीक। फिर मैं आपको क्या बताया? वैल्यू ऑफ IR1 is what? I is equal to voltage divided by resistance, but across the resistance R1 the value of reference voltage is fixed। so the voltage across the R1 is V reference and the value of resistance is R1। V reference is how much? 1.25 volt and resistance is R1। the value of this resistance is also as 240 ohm। यहाँ हमने मेंशन नहीं किया पर इसकी वैल्यू 240 ओम आपको लेके चलना है, ठीक। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? V0। लेट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ IR1 here and there। तो V0 will be equal to V reference 1 plus R2 by R1 plus I adjustment into R2। जब आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। now V reference is how much? 1.25। so that is the value of complete output voltage of adjustable type positive voltage regulator। so what is the value of output? 1.25, 1 plus R2 by R1 plus I adjustment into R2। in case of LM317 I adjustment is what? 100 microampere, which is almost negligible। तो अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से नेग्लिजेंसी की वजह से, क्योंकि 1.2 R2 by R1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा ही वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक। ये तो माइक्रो एम्पियर्स में। तो V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.25 1 plus R2 by R1। so that is the value of output generated at the output terminal of adjustable type positive voltage regulator, ठीक। तो इस इक्वेशन के थ्रू यूजुअली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या कैलकुलेट करना है? R2, क्योंकि R1 फिक्स है। फिर से मैं बता देता हूं R1 की वैल्यू कितनी? 240 ओम, ये इसकी वैल्यू फिक्स है, ठीक। देखिए एक प्रॉब्लम रिलेटेड टू
दिस प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में? डिजाइन एंड एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। एक एडजस्टमेंट वोल्टेज रेगुलेटर आपको डिजाइन करना है, पैरामीटर्स आपको गिवन है। आउटपुट वोल्टेज कितना जनरेट होना चाहिए उस रेगुलेटर से? 5 to 12 वोल्ट, इसके बीच में उसको वोल्टेज जनरेट करना चाहिए। आउटपुट करंट कितनी हो सकती है? 1 एम्पियर आउटपुट करंट हो सकती है। रेगुलेटर किस टाइप का है? LM317। तो LM317 से आपको क्लियर हो गया आउटपुट वोल्टेज कैसा जनरेट होगा? पॉजिटिव टाइप। ठीक, तो पॉजिटिव टाइप जनरेट होने वाला है LM317 से। इक्वेशन अभी मैं आपको बताया, आउटपुट वोल्टेज का क्या है? 1.25 1 प्लस R2 बाई R1 प्लस आई एडजस्टमेंट इनटू R2, ये इसकी वैल्यू है। सब कुछ दिया हुआ है आपको, ठीक है, इजीली कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत इजी प्रॉब्लम है। ठीक, इन केस ऑफ LM317 आई एडजस्टमेंट इज हाउ मच? 100 माइक्रो एम्पियर। इक्वेशन आपके पास है आउटपुट का, V रेफरेंस 1 प्लस R2 बाई R1 प्लस आई एडजस्टमेंट इनटू R2। आई एडजस्टमेंट आपको पता है, V रेफरेंस भी आपको पता है कि 1.25 इसकी वैल्यू होती है। मैं आपको पहले ही बताया R1 की वैल्यू कितनी है? 240 ओम। यूजुअली कितनी होती है? 240 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग यूज करते हैं, विच इज फिक्स। ठीक, तो R1 भी आपको पता चल गया तो इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं R2 की वैल्यू, क्योंकि अननोन पैरामीटर सिर्फ क्या है यहाँ पे? R2। So from there the value of R2 is how much? 706 ohm, or it can be written as 0.71 kilo ohm. So when the value of output voltage is 5 volt, क्योंकि वैरी कहाँ से कहाँ तक होना है? 5 to 12 volt. तो जिस कंडीशन में हमने मिनिमम वोल्टेज लिया 5, so when the value of output voltage is 5, on that condition R2 is how much? 0.71 kilo. Second आप रखिए, when the value of output voltage is 12 volt, again for 12 calculate the value of this R2. In case of output voltage of 12 volt, what is the value of R2? R2 is 2.01 kilo. तो रेंज क्या मिल गई आपको रेजिस्टेंस की? 0.71 to 2.01 किलो ओम, ये होना चाहिए। तो आप करेंगे क्या? आप एक 3 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, बहुत ज्यादा हाई वैल्यू भी लेना ठीक नहीं है, क्या ले लिए? 3 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर। तो R2 की जगह में आपको कनेक्ट क्या करना होगा? वन पोटेंशियोमीटर ऑफ द वैल्यू 3 किलो ओम। इससे आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, उसके सॉल्यूशन उतने ही इजी है। यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, इसको आप लोग कर लीजिए। सिर्फ आपको क्या करना है? R2 की वैल्यू ही इन जनरल कैलकुलेट करना रहता है। ठीक, so this is about positive adjustable voltage regulator. Similarly, in case of negative adjustable type voltage regulator, पूरा calculation same. Negative voltage regulator is same as positive adjustable type voltage regulator. सिर्फ यहाँ पे changes क्या है? Changes of sign, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट ऑफ द पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग फिर इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे R2 के क्रॉस टोटल करंट क्या होगा? आई एडजस्टमेंट प्लस आई रेफरेंस एट नोड A, that is bifurcated into two part. Here the value of current is I adjustment, here the value of current is I reference. So total value of output voltage is how much? V naught is equal to, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है ना, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, पर करंट का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आउटपुट वोल्टेज विल बी हाउ मच? माइनस VR1 minus VR2, minus VR1 minus VR2, where VR1 will be 1.25 volt, VR2 will be I adjustment plus I reference into R2. ठीक, here also the value of adjustment current is 100 microampere. ठीक, बाकी सब कुछ सेम है। The operation of positive and negative both are same, सिर्फ चेंजेस कहाँ पे? साइन में। सेम देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया, ये क्या हो गया? माइनस, दिस ऑल्सो बी माइनस। So after simplification, what is the value of output? Output will be minus 1.25, 1 plus R2 by R1. So this is the basic difference in adjustable positive and negative voltage regulator. All the operations are same, सिर्फ changes कहाँ पे? साइन में। पॉजिटिव के केस में entire range of positive voltage source with output can be generated with the help of LM317.
and in case of negative adjustment voltage regulator, entire range of negative output voltage can be generated with the help of LM337. ठीक? So this is all about 3-terminal voltage regulator. ठीक? Now we are at the completion of this. ठीक है? Any doubt? Any doubt so far? ठीक है, तो हमने आज क्या डिस्कस किया? फंक्शनल डायग्राम ऑफ 3-terminal voltage regulator, then fixed voltage regulator, where fixed voltage regulator is having two types, positive and negative. Positive is represented as 78XX and negative is represented by 79XX, where 79 represents positive, 78 represents positive and 79 represents negative. Similarly, in case of adjustable type, we can change the amount of output voltage generated with the help of that IC. So positive adjustable type voltage regulator is denoted as LM317. Similarly, negative adjustable type voltage regulator is denoted as LM337. So the calculation of both are same. In case of positive, the value of output voltage is plus 1.251 plus R2 by R1. But in case of negative type, output voltage will be minus 1.251 plus R2 by R1. So calculation wise, numerical wise, everything is same. Changes आया, actual में आपको calculate क्या करना है? So only you need to calculate the value of this potentiometer, or we need to calculate the value of R2. तो R2 की वैल्यू कितनी होगी? ठीक, तो R1 की वैल्यू फिक्स है, मैं आपको पहले ही बताया 240 ओम. V reference की वैल्यू भी फिक्स है 1.25 ओम. So easily from there you can calculate the value of R2. ठीक, it's a related question देखें. So now we are at the completion of this unit. So last topic is remaining, that is last topic क्या बचा है हम लोग का? Last topic of this is general purpose IC regulator 723. So it's a theoretical topic, only important features and internal structure. So try to complete by yourself. देखता हूँ मैं डिस्कस कर दूंगा लास्ट टाइम, और कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं. न्यूमेरिकल is not related to this IC 723. Only important features and internal structures is important for that. So this is all about unit number 4. So I hope that would be clear to all of you. Any doubt? किसी कोई डाउट है तो बताइए. एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊंगा.